الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار، یہ جو مجلس کا ہم یوم تاسیس منا رہے ہیں، اس کے احیاء کی سالگرہ منا رہے ہیں، اے اللہ مجلس کے قائدین کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے اس کام کے ضمن میں اللہ سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ اے اللہ مجلس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے دل میں مجلس کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صدر محترم بیرسٹر اسدالدین اویسی کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اکبر الدین اویسی کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ہمارے قائدین کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجلس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، ہم تمام طبقات کے لیے لڑنے اور ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فضل قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ المسلمین زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، بیرسٹر اسدالدین اویسی زندہ باد، بیرسٹر اسدالدین اویسی زندہ باد، اکبر الدین اویسی زندہ باد، MIM زندہ باد، MIM زندہ باد، جے بھیم جے بھیم جے بھیم جے بھیم۔ بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم جناب محمد حبیب الرحمان صاحب، فاؤنڈر مجلس اتحاد المسلمین لیڈر، اور جناب سابقہ کونسلر محمد ابراہیم صاحب، سابقہ صدر جناب محمد عبدالصمد منجووالا صاحب، مجلس کی ٹیم کے ذمہ داران، عہدیداران اور مجلس سے وابستہ تمام اولو العلم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو دن ہے یہ انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ اہمیت کا دن اس اعتبار سے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا اس وقت مجلس کا قیام عمل میں نہیں آیا، بلکہ بھارت کی آزادی کے بعد 17 ستمبر 1948 کو جب حیدرآباد کو انڈیا میں شامل کیا گیا اور ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ، ظلم اور زبردستی کے ساتھ یہاں پر بہت بڑے فسادات جو ہے کروائے گئے، جس کے اندر سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور ایسا ننگا ناچ ناچا گیا کہ لوگوں کے دل میں خوف اور ہراس اس طرح بیٹھ گیا کہ لوگ سر پر ٹوپی پہننے سے اور داڑھی چھوڑنے سے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں شناخت ہونے پر ہمارا جو ختم خون نہ کر دیا جائے۔ لوگوں کے اندر جو خوف اور ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمارے قائدین اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے قوم کے اس حال کو دیکھ کر دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ایک واحد جماعت تھی جو آزادی سے پہلے بھی ان کے حقوق کے لیے حکومت نظام سے ٹکراتی تھی اور آزادی کے بعد بھی حکومت وقت سے ٹکرانا کسی کی بس کی بات ہے۔ تو ہمارے قائدین واحد الدین اویسی نے اس مجلس اتحاد المسلمین کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور مجلس کا احیاء کیا، اور احیاء کے دوسرے ہی سال جب وہاں پر کارپوریشن کے جب بائی الیکشن ہوئے اس میں 2 سیٹیں خالی ہوئی تھی، دونوں سیٹوں پر مجلس نے مقابلہ کیا
एक सीट पर मुसलमान को और एक दूसरी सीट पर दलित को। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मजलिस सबसे पहले इलेक्शन में अपनी ठहराई हुई दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल। सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दलित था और सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मुसलमान था। ऐसी तारीख रखने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान की जो नामनहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जो खुद को सेकुलर बताकर सिर्फ इसलिए बताती हैं कि उनको मुसलमानों के, दलितों के, क्रिश्चियनों के, पिछड़े तबकात के वोट हासिल करना है, वो सेकुलरिज्म का काम नहीं करते, सिर्फ नामनहाद सेकुलर का नाम देते, नारा देते हैं और काम अपना करते हैं। दरअसल ये जो कांग्रेस जो इब्तिदा से इख्तिदार में रही है, आज़ादी में अपना भरपूर अमल रहा, ये बताते हुए इख्तिदार पर कब्जा भी किए और हालिया दिनों तक उन्होंने ही इख्तिदार करता रहा। लेकिन कभी भी उन्होंने न पिछड़े तबकात के बारे में सोचा, न दलितों के बारे में सोचा, न मुसलमानों के बारे में सोचा, न क्रिश्चियनों के बारे में सोचा, बल्कि वो वही जो है एजेंडे पर काम करते रहे जो आरएसएस उनको देती रही। आपको ताज्जुब होगा या नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि दरअसल कांग्रेस भी आरएसएस की ही एजेंट है, उसके भी पीछे आरएसएस का ही हाथ है। ये बात जब से जो है ना इसकी भारत की जब तकसीम हुई, पाकिस्तान की शक्ल में एक टुकड़ा मुसलमानों के नाम से एक अलग कर दिया गया और यहाँ पर जो है भारत को एक अलहदा जो है ना पहचान दी गई। इसके भी पीछे कहा जाता है कि जिन्ना की जो है ना ये आइडियोलॉजी थी, ये जिन्ना की आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये आरएसएस का एजेंडा था। क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान अगर यहाँ पर भारत में रहेंगे तो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को पाकिस्तान की शक्ल में अलग कर दिया और यहाँ पर जो मुसलमान रह गए उनको दबाते रहे, कुचलते रहे, कभी फसादात कर कर, कभी किसी तौर से, कभी किसी तौर से। मुसलमानों की बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रही है। और इस तरह रही है, सबसे पहले मुसलमानों को उनकी जायदादों से, उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए टेनेंसी एक्ट जो है ना उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू किया। कहा गया कि जो जमीन में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसी की जमीन। इस तरह मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को वहाँ पर काम करने वालों की उसमें बांट दिया। और उसके बाद मुख्तलिफ नए नए कानून इस तरह बनाते गए कि मुसलमानों की मईशत कमजोर होती रहे। जहाँ जहाँ पर मुसलमान तिजारत में आगे थे वहाँ पर फसादात कराकर, जहाँ पर मुसलमान मुलाजमत में आगे थे वहाँ पर दूसरे तरीके से, जहाँ पर मुसलमान खुशहाल थे वहाँ पर जो है ना इन्होंने मुसलमानों के ना जो है ना कारीगरी को उन्होंने खत्म करते चले गया। मुरादाबाद की कारीगरी को खत्म कर दिया। यहाँ आज मैं बीदर की बात करता हूँ, बीदर में भी जो बिजली कारीगरी है उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये हुकूमतें जो हमारे वोट से इख्तिदार में आती हैं और हमारे ही पीठ में चुरा खोपती हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया कि जो हमारे वोट से जीतकर हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम उनकी पीठ में खंजर, पीठ में नहीं बल्कि उनके सीने पर खंजर भोंकेंगे और बबांगे दहल पूरे हिंदुस्तान में ठहर कर हम ये बिल्कुल जुर्रतमंदी के साथ ये कहेंगे कि हाँ हम कांग्रेस के मुखालिफ हैं। कांग्रेस ने हमारी मईशत को तबाह किया, कांग्रेस ने हमारी नस्लों को तबाह किया, कांग्रेस हमारी बर्बादी की जिम्मेदार है, इसलिए हम कांग्रेस को किसी एतबार से भी इख्तिदार में रहने का मौका नहीं देंगे। ये जो मुसलमान जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, जो दलित कांग्रेस की तायीद करते हैं, ये सिर्फ जहनी गुलाम होकर रह गए हैं। जहन के उनके ऊपर गुलामी छा गई है, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मजलिस अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो बीजेपी का फायदा होता है, बीजेपी की एजेंट है। ये कैसी अहमकाना और बेवकूफाना बात है। आप सोच लीजिए कि पार्लियामेंट पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐवान है। इस बड़े ऐवान के अंदर
जहाँ पर एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पर भी एक एक सेकंड हर मुल्क की पार्लियामेंट का काउंट होता है, देखा जाता है कि वहाँ पर क्या कानून बन रहे हैं, किसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। वो वैसी पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर हुकूमत की बनाई जाने वाली हर पॉलिसी के ऊपर तनकीद करने वाला, हर पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले को ये बेवकूफ जो है ना बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बीजेपी का एजेंट है तो पार्लियामेंट में ठहर कर हुकूमत के जितने इक़दाम हैं, जितने गलत बातें हैं, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है कोई? ये सिर्फ अपने पैरों के नीचे सब कुछ खिसकता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं सुधरता। इसलिए जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका एजेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों से आज के इस मौके पर जो आप लोग जमा हुए हैं, यकीनन आप लोगों की जमात से वाबस्तगी का ये मिसाल है कि आप लोग जो है ना अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम लोग सुबह को देर तक सोते हैं। हमको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। फलस्तीन के एक रहनुमा इस्माइल होनिया ने आवाज देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब मुसलमान जुमा में जिस तरह जमा होते हैं उस तरह फजर की नमाज में जमा होना शुरू करेंगे तो फलस्तीन को मैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आजाद करा दूंगा। तो हम जिसको जो है ना ये हुक्म दिया गया है कि सुबह का सोना रिस्क को रोकता है, और हम ऐसे रसूल के मानने वाले आपकी तालीमात पर अमल न करते हुए आज दलील खार हो रहे हैं। आज मजलिस का आया है। मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सदर मोहतरम को जो दूरअंदेशी दी है, जो मुदब्बिराना सलाहियत दी है, जो बेबाकी और जरूरतमंदी दी है, अल्लाह ताला उसके अंदर और इजाफा करे। दुश्मन भी है तो उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का एतराफ़ करता है और यकीनी तौर पर आज उन्हीं की बदौलत आज सारे भारत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाम लिया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आप सोचिए कि किधर हैदराबाद और किधर गुजरात में भी वहाँ के जो है ना अहमदाबाद के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मजलिस ने अपने 7 कॉर्पोरेटर जीते हैं। और 2 दिन पहले 28 तारीख को गोधरा में भी इलेक्शन हुआ है। उसका रिजल्ट शायद कल या परसों में आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले रिजल्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोधरा में भी अपनी कामयाबी दर्ज कराएगी, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुकाम पर जहाँ जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे, मुझे उम्मीद है कि तमाम ओबीसीज, तमाम दलित, तमाम क्रिश्चियन और तमाम मुसलमान मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और इसको एक बड़ी ताकत की शक्ल में बीजेपी के मुकाबले में जो है ना पेश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे कायदीन को और हौसला बख्शे। साथ ही साथ मैं हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए और मजलिस के तमाम रफ़क़ा और जो उनके सिपाही हैं, जो मजलिस के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम MLAs हैं, MPs हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, बल्कि तमाम कारकुनान हैं, जो भी मस्जिद से वाबस्ता हैं, उन सब के दिल में अल्लाह ताला एक हौसला बख्शे और उन तमाम लोगों के सारे मसाइल को अल्लाह पाक हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار، یہ جو مجلس کا ہم یوم تاسیس منا رہے ہیں، اس کے احیاء کی سالگرہ منا رہے ہیں، اے اللہ مجلس کے قائدین کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے اس کام کے ضمن میں اللہ سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ اے اللہ مجلس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے دل میں مجلس کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صدر محترم بیرسٹر رفیع الدین اویسی کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اکبر الدین اویسی کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ہمارے قائدین کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجلس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، ہم تمام طبقات کے لیے لڑنے اور ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صد فضل قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ المسلمین زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، بیرسٹر اسد الدین اویسی زندہ باد، بیرسٹر اسد الدین اویسی زندہ باد، اکبر الدین اویسی زندہ باد، MIM زندہ باد، MIM زندہ باد، جے میم جے بھیم جے میم جے بھیم۔ بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم جناب محمد حبیب الرحمان صاحب، فاؤنڈر مجلس اتحاد المسلمین لیڈر، اور جناب سابقہ کونسلر محمد ابراہیم صاحب، سابقہ صدر جناب محمد عبدالصمد منجووالا صاحب، مجلس کی ٹیم کے ذمہ داران، عہدیداران اور مجلس سے وابستہ تمام اولو العلم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو دن ہے یہ انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ اہمیت کا دن اس اعتبار سے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا اس وقت مجلس کا قیام عمل میں نہیں آیا، بلکہ بھارت کی آزادی کے بعد 17 ستمبر 1948 کو جب حیدرآباد کو انڈیا میں شامل کیا گیا اور ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ، ظلم اور زبردستی کے ساتھ یہاں پر بہت بڑے فسادات جو ہے کروائے گئے، جس کے اندر سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور ایسا ننگا ناچ ناچا گیا کہ لوگوں کے دل میں خوف اور ہراس اس طرح بیٹھ گیا کہ لوگ سر پر ٹوپی پہننے سے اور داڑھی چھوڑنے سے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں شناخت ہونے پر ہمارا بھی ختم خون نہ کر دیا جائے۔ لوگوں کے اندر جو خوف اور ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمارے قائدین، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے قوم کے اس حال کو دیکھ کر دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ایک واحد جماعت تھی جو آزادی سے پہلے بھی ان کے حقوق کے لیے حکومت نظام سے ٹکراتی تھی اور آزادی کے بعد بھی حکومت وقت سے ٹکرانا کسی کی بس کی بات ہے۔ تو ہمارے قائدین واحد الدین اویسی نے اس مجلس اتحاد المسلمین کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور مجلس کا احیاء کیا، اور احیاء کے دوسرے ہی سال جب وہاں پر کارپوریشن کے جب بائی الیکشن ہوئے اس میں 2 سیٹیں خالی ہوئی تھی، دونوں سیٹوں پر مجلس نے مقابلہ کیا، ایک سیٹ پر مسلمان کو اور ایک دوسری سیٹ پر دلت کو، اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ مجلس سب سے پہلے الیکشن میں اپنی ٹھہرائی ہوئی دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔
सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दलित था और सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मुसलमान था। ऐसी तारीख रखने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान की जो नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जो खुद को सेकुलर बताकर सिर्फ इसलिए बताती हैं कि उनको मुसलमानों के, दलितों के, क्रिश्चियनों के, पिछड़े तबकात के वोट हासिल करना है, वो सेकुलरिज्म का काम नहीं करते, सिर्फ नाम नहाद सेकुलर का नाम देते, नारा देते हैं और काम अपना करते हैं। दरअसल ये जो कांग्रेस जो इब्तिदा से इख्तिदार में रही है, आज़ादी में अपना हाथ, अपना भरपूर अमल रहा, ये बताते हुए इख्तिदार पर कब्जा भी किए और हालिया दिनों तक वो उन्होंने ही इख्तिदार करता रहा। लेकिन कभी भी उन्होंने न पिछड़े तबकात के बारे में सोचा, न दलितों के बारे में सोचा, न मुसलमानों के बारे में सोचा, न क्रिश्चियनों के बारे में सोचा, बल्कि वो वही जो है एजेंडे पर काम करते रहे जो आरएसएस उनको देती रही। आपको ताज्जुब होगा या नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि दरअसल कांग्रेस भी आरएसएस की ही एजेंट है, उसके भी पीछे आरएसएस का ही हाथ है। ये बात जब से जो है ना इसकी भारत की जब तकसीम हुई, पाकिस्तान की शक्ल में एक टुकड़ा मुसलमानों के नाम से एक अलग कर दिया गया और यहाँ पर जो है भारत को एक अलहदा जो है ना पहचान दी गई। इसके भी पीछे कहा जाता है कि जिन्ना की जो है ना ये आइडियोलॉजी थी, ये जिन्ना की आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये आरएसएस का एजेंडा था। क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान अगर यहाँ पर भारत में रहेंगे तो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को पाकिस्तान की शक्ल में अलग कर दिया और यहाँ पर जो मुसलमान रह गए उनको दबाते रहे, कुचलते रहे, कभी फसादात कर कर, कभी किसी तौर से, कभी किसी तौर से। मुसलमानों की बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रही है। और इस तरह रही है, सबसे पहले मुसलमानों को उनकी जायदादों से, उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए टेनेंसी एक्ट जो है ना उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू किया। कहा गया कि जो जमीन में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसी की जमीन। इस तरह मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को वहाँ पर काम करने वालों की उसमें बांट दिया और उसके बाद मुख्तलिफ नए नए कानून इस तरह बनाते गए कि मुसलमानों की मईशत कमजोर होती रहे। जहाँ जहाँ पर मुसलमान तिजारत में आगे थे वहाँ पर फसादात कराकर, जहाँ पर मुसलमान मुलाजमत में आगे थे वहाँ पर दूसरे तरीके से, जहाँ पर मुसलमान खुशहाल थे वहाँ पर जो है ना इन्होंने मुसलमानों के ना जो है ना कारीगरी को उन्होंने खत्म करते चले गया। मुरादाबाद की कारीगरी को खत्म कर दिया। यहाँ आज मैं बीदर की बात करता हूँ, बीदर में भी जो बिजली कारीगरी है उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये हुकूमतें जो हमारे वोट से इख्तिदार में आती हैं और हमारे ही पीठ में चुरा खोपती हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया कि जो हमारे वोट से जीतकर हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम उनकी पीठ में खंजर, पीठ में नहीं बल्कि उनके सीने पर खंजर भोंकेंगे और बबांगे जाहिर पूरे हिंदुस्तान में ठहर कर हम ये बिल्कुल जुर्रतमंदी के साथ ये कहेंगे कि हाँ, हम कांग्रेस के मुखालिफ हैं। कांग्रेस ने हमारी मईशत को तबाह किया, कांग्रेस ने हमारी नस्लों को तबाह किया, कांग्रेस हमारी बर्बादी की जिम्मेदार है, इसलिए हम कांग्रेस को किसी एतबार से भी इक़्तिदार में रहने का मौका नहीं देंगे। ये जो मुसलमान जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, जो दलित कांग्रेस की तायीद करते हैं, ये सिर्फ जहनी गुलाम होकर रह गए हैं। जहन के उनके ऊपर गुलामी छा गई है, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मजलिस अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो बीजेपी का फायदा होता है, बीजेपी की एजेंट है। ये कैसी अहमकाना और बेवकूफाना बात है। आप सोच लीजिए कि पार्लियामेंट पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐवान है। इस बड़े ऐवान के अंदर जहाँ पर एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पर भी एक एक सेकंड हर मुल्क की पार्लियामेंट का काउंट होता है। देखा जाता है कि वहाँ पर क्या कानून बन रहे हैं, किसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। वो वैसी पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर हुकूमत की बनाई जाने वाली हर पॉलिसी के ऊपर तनकीद करने वाला, हर पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले को ये बेवकूफ जो है ना बीजेपी का एजेंट कहते हैं।
बीजेपी का एजेंट है तो पार्लियामेंट में बैठकर हुकूमत के जितने इक़दाम है, जितने गलत बातें हैं, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है कोई? ये सिर्फ अपने पैरों के नीचे सब कुछ खिसकता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं सुधरता। इसलिए जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका एजेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों से आज के इस मौके पर जो आप लोग जमा हुए हैं, यकीनन आप लोगों की जमात से वाबस्तगी का ये मिसाल है कि आप लोग जो है ना अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग सुबह को देर तक सोते हैं। हमको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। फलस्तीन के एक रहनुमा इस्माइल होनिया ने आवाज देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब मुसलमान जुमा में जिस तरह जमा होते हैं उस तरह फजर की नमाज में जमा होना शुरू करेंगे तो फलस्तीन को मैं सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आजाद करा दूंगा। तो हम जिसको जो है ना ये हुक्म दिया गया है कि सुबह का सोना रिस्क को रोकता है और हम ऐसे रसूल के मानने वाले आपकी तालीमात पर अमल न करते हुए आज दलील खार हो रहे हैं। आज मजलिस का आया है। मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सदर मोहतरम को जो दूरअंदेशी दी है, जो मुदब्बिराना सलाहियत दी है, जो बेबाकी और जरूरतमंदी दी है, अल्लाह ताला उसके अंदर और इजाफा करे। दुश्मन भी है तो उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का एतराफ करता है और यकीनी तौर पर आज उन्हीं की बदौलत आज सारे भारत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाम लिया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आप सोचिए कि किधर हैदराबाद और किधर गुजरात में भी वहाँ के जो है ना अहमदाबाद के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मजलिस ने अपने 7 कॉर्पोरेटर जीते हैं। और 2 दिन पहले 28 तारीख को गोधरा में भी इलेक्शन हुआ है। उसका रिजल्ट शायद कल या परसों में आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले रिजल्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोधरा में भी अपनी कामयाबी दर्ज कराएगी, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुकाम पर जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे, मुझे उम्मीद है कि तमाम ओबीसीज, तमाम दलित, तमाम क्रिश्चियन और तमाम मुसलमान मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और इसको एक बड़ी ताकत की शक्ल में बीजेपी के मुकाबले में जो है ना पेश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे कायदीन को और हौसला बख्शे। साथ ही साथ मैं हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए और मजलिस के तमाम रफ़क़ा और जो उनके सिपाही हैं, जो मजलिस के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम एमएलएज हैं, एमपीज हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, बल्कि तमाम कारकुनान हैं, जो भी मस्जिद से वाबस्ता हैं, उन सब के दिल में अल्लाह ताला एक हौसला बख्शे और उन तमाम लोगों के सारे मसाइल को अल्लाह पाक हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ पाक परवरदिगार, ये जो मजलिस का हम यौम तासीस मना रहे हैं, इसके अहिया की सालगिरह मना रहे हैं, ऐ अल्लाह मजलिस के क़ायदीन के खबरों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह उनका
उनके इस काम के ज़मन में अल्लाह से बेहतर बदला अता फरमा। जितने लोग हैं अल्लाह मजलिस के लिए काम कर रहे हैं उनके दिल में मजलिस के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमा। अकबरुद्दीन अवैसी को मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमा। हमारे कायदीन को सेहत के साथ उम्र दराज अता फरमा। ए अल्लाह जो लोग मजलिस के लिए कोशिश कर रहे हैं, ए अल्लाह जिद्दोजहद कर रहे हैं उनके दिलों में इखलास पैदा फरमा, हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा। हम तमाम तबक़ात के लिए लड़ने और उनके हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने वाला बना दे। हमारी दुआओं को हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे फज़ल क़बूल और मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारायण मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। आइए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब, फाउंडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर, और जनाब साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम साहब, साबिक़ा सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल समद मंजूवाला साहब, मजलिस की टीम के जिम्मेदारान, अहदेदारान और मजलिस से वाबस्ता तमाम उलुल इल्म नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो दिन है ये इंतहाई अहमियत का दिन है। अहमियत का दिन इस एतबार से कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त मजलिस का क़याम अमल में नहीं आया, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद 17 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ, जुल्म और ज़बरदस्ती के साथ यहाँ पर बहुत बड़े फसादात जो है करवाए गए, जिसके अंदर सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें चली गई और ऐसा नंगा नाच नाचा गया कि लोगों के दिल में खौफ और हरास इस तरह बैठ गया कि लोग सर पर टोपी पहनने से और दाढ़ी छोड़ने से भी घबराते थे कि कहीं शनाख्त होने पर हमारा जो खत्म खून न कर दिया जाए। लोगों के अंदर जो खौफ और हरास पैदा हो गया था उसको दूर करना वक्त की सबसे अहम जरूरत है। हमारे कायदीन अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, उन्होंने कौम के इस हाल को देखकर दिल में ये तहिया कर लिया कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया जरूरी है, क्योंकि यही वो एक वाहिद जमात थी जो आज़ादी से पहले भी इनके हुकूक के लिए हुकूमत निज़ाम से टकराती थी और आज़ादी के बाद भी हुकूमत वक्त से टकराना किसी की बस की बात है। तो हमारे कायदीन वाहिदुद्दीन अवैसी ने इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर अपने हाथ में संभाली और मजलिस का अहिया किया। और अहिया के दूसरे ही साल जब वहाँ पर कॉरपोरेशन के जब बाई इलेक्शन हुए उसमें 2 सीटें खाली हुई थी, दोनों सीटों पर मजलिस ने मुकाबला किया, एक सीट पर मुसलमान को और एक दूसरी सीट पर दलित को। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मजलिस सबसे पहले इलेक्शन में अपनी ठहराई हुई दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल। सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दलित था और सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मुसलमान था। ऐसी तारीख रखने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान की जो नामनहाद सेकुलर पार्टियां हैं
जो खुद को सेकुलर बताकर सिर्फ इसलिए बताती है कि उनको मुसलमानों के, दलितों के, क्रिश्चियनों के, पिछड़े तबकात के वोट हासिल करना है। वो सेकुलरिज्म का काम नहीं करते, सिर्फ नाम नेहत सेकुलर का नाम देते, नारा देते हैं और काम अपना करते हैं। दरअसल ये जो कांग्रेस जो इब्तिदा से इख्तिदार में रही है, आज़ादी में अपना हाथ, अपना भरपूर अमल रहा, ये बताते हुए इख्तिदार पर कब्जा भी किए और हालिया दिनों तक वो उन्होंने ही इख्तिदार करता रहा। लेकिन कभी भी उन्होंने न पिछड़े तबकात के बारे में सोचा, न दलितों के बारे में सोचा, न मुसलमानों के बारे में सोचा, न क्रिश्चियनों के बारे में सोचा, बल्कि वो वही जो है एजेंडे पर काम करते रहे जो आरएसएस उनको देती रही। आपको ताज्जुब होगा या नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि दरअसल कांग्रेस भी आरएसएस की ही एजेंट है, उसके भी पीछे आरएसएस का ही हाथ है। ये बात जब से जो है ना इसकी भारत की जब तकसीम हुई, पाकिस्तान की शक्ल में एक टुकड़ा मुसलमानों के नाम से एक अलग कर दिया गया और यहाँ पर जो है भारत को एक अलहदा जो है ना पहचान दी गई, इसके भी पीछे कहा जाता है कि जिन्ना की जो है ना ये आइडियोलॉजी थी। ये जिन्ना की आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये आरएसएस का एजेंडा था, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान अगर यहाँ पर भारत में रहेंगे तो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को पाकिस्तान की शक्ल में अलग कर दिया और यहाँ पर जो मुसलमान रह गए उनको दबाते रहे, कुचलते रहे, कभी फसादात कर कर, कभी किसी तौर से, कभी किसी तौर से। मुसलमानों की बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रही है। और इस तरह रही है, सबसे पहले मुसलमानों को उनकी जायदादों से, उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए टेनेंसी एक्ट जो है ना उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू किया। कहा गया कि जो जमीन में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसी की जमीन। इस तरह मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को वहाँ पर काम करने वालों की उसमें बांट दिया और उसके बाद मुख्तलिफ नए नए कानून इस तरह बनाते गए कि मुसलमानों की मईशत कमजोर होती रहे। जहाँ जहाँ पर मुसलमान तिजारत में आगे थे वहाँ पर फसादात कराकर, जहाँ पर मुसलमान मुलाजमत में आगे थे वहाँ पर दूसरे तरीके से, जहाँ पर मुसलमान खुशहाल थे वहाँ पर जो है ना इन्होंने मुसलमानों के ना जो है ना कारीगरी को उन्होंने खत्म करते चले गया। मुरादाबाद की कारीगरी को खत्म कर दिया। यहाँ आज मैं बीदर की बात करता हूँ, बीदर में भी जो बिजली कारीगरी है उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये हुकूमतें जो हमारे वोट से इख्तिदार में आती हैं और हमारे ही पीठ में चूरा खोपती हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया कि जो हमारे वोट से जीतकर हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम उनकी पीठ में खंजर, पीठ में नहीं बल्कि उनके सीने पर खंजर भोंकेंगे और बबांगे जाहिर पूरे हिंदुस्तान में ठहर कर हम ये बिल्कुल जुर्रतमंदी के साथ ये कहेंगे कि हाँ हम कांग्रेस के मुखालिफ हैं। कांग्रेस ने हमारी मईशत को तबाह किया, कांग्रेस ने हमारी नस्लों को तबाह किया, कांग्रेस हमारी बर्बादी की जिम्मेदार है, इसलिए हम कांग्रेस को किसी एतबार से भी इख्तिदार में रहने का मौका नहीं देंगे। ये जो मुसलमान जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, जो दलित कांग्रेस की तायीद करते हैं, ये सिर्फ जहनी गुलाम होकर रह गए हैं। जहन के उनके ऊपर गुलामी छा गई है, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मजलिस अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो बीजेपी का फायदा होता है, बीजेपी की एजेंट है। ये कैसी अहमकाना और बेवकूफाना बात है। आप सोच लीजिए कि पार्लियामेंट पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐवान है। इस बड़े ऐवान के अंदर जहाँ पर एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पर भी एक एक सेकंड हर मुल्क की पार्लियामेंट का काउंट होता है। देखा जाता है कि वहाँ पर क्या कानून बन रहे हैं, किसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। वो वैसी पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर हुकूमत की बनाई जाने वाली हर पॉलिसी के ऊपर तनकीद करने वाला, हर पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले को ये बेवकूफ जो है ना बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बीजेपी का एजेंट है तो पार्लियामेंट में ठहर कर हुकूमत के जितने इक़दाम है, जितने गलत बातें हैं, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है कोई?
ये सिर्फ अपने पैरों के नीचे सब कुछ खिसकता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं सुधरता। इसलिए जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका एजेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों से आज के इस मौके पर जो आप लोग जमा हुए हैं, यकीनन आप लोगों की जमात से वाबस्तगी का ये मिसाल है कि आप लोग जो है ना अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग सुबह को देर तक सोते हैं। हमको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। फलस्तीन के एक रहनुमा इस्माइल होनिया ने आवाज देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब मुसलमान जुमा में जिस तरह जमा होते हैं उस तरह फजर की नमाज में जमा होना शुरू करेंगे तो फलस्तीन को मैं सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आजाद करा दूंगा। तो हम जिसको जो है ना ये हुक्म दिया गया है कि सुबह का सोना रिस्क को रोकता है और हम ऐसे रसूल के मानने वाले आपकी तालीमात पर अमल न करते हुए आज दलील खार हो रहे हैं। आज मजलिस का आया है। मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सदर मोहतरम को जो दूरअंदेशी दी है, जो मुदब्बिराना सलाहियत दी है, जो बेवा की और जरूरतमंदी दी है, अल्लाह ताला उसके अंदर और इजाफा करे। दुश्मन भी है तो उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का एतराफ करता है और यकीनी तौर पर आज उन्हीं की बदौलत आज सारे भारत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाम लिया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आप सोचिए कि किधर हैदराबाद और किधर गुजरात में भी वहाँ के जो है ना अहमदाबाद के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मजलिस ने अपने 7 कॉर्पोरेटर जीते हैं। और 2 दिन पहले 28 तारीख को गोधरा में भी इलेक्शन हुआ है। उसका रिजल्ट शायद कल या परसों में आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले रिजल्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोधरा में भी अपनी कामयाबी दर्ज कराएगी, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुकाम पर जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे, मुझे उम्मीद है कि तमाम ओबीसीज, तमाम दलित, तमाम क्रिश्चियन और तमाम मुसलमान मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और इसको एक बड़ी ताकत की शक्ल में बीजेपी के मुकाबले में जो है ना पेश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे कायदीन को और हौसला बख्शे। साथ ही साथ मैं हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए और मजलिस के तमाम रफ़क़ा और जो उनके सिपाही हैं, जो मजलिस के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम MLAs हैं, MPs हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, बल्कि तमाम कारकुनान हैं, जो भी मस्जिद से वाबस्ता हैं, उन सब के दिल में अल्लाह ताला एक हौसला बख्शे और उन तमाम लोगों के सारे मसाइल को अल्लाह पाक हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ पाक परवरदिगार, ये जो मजलिस का हम यौम तासीस मना रहे हैं, इसके अहिया की सालगिरह मना रहे हैं, ऐ अल्लाह मजलिस के कायदीन के खबरों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह उनके इस काम के ज़मन में अल्लाह की बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। जितने लोग हैं अल्लाह मजलिस के लिए काम कर रहे हैं, उनके दिल में मजलिस के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को
मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमा। अकबरुद्दीन अवैसी को मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमा। हमारे कायदीन को सेहत के साथ उम्र दराज अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग मजलिस के लिए कोशिश कर रहे हैं, ए अल्लाह, जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनके दिलों में इखलास पैदा फरमा, हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा। हम तमाम तबक़ात के लिए लड़ने और उनके हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाला बना दे। हमारी दुआओं को हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे फजल कबूल और मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारायण मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। आइए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब, फाउंडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर, और जनाब साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम साहब, साबिक़ा सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल समद मंजूवाला साहब, मजलिस की टीम के जिम्मेदारान, अहदेदारान और मजलिस से वाबस्ता तमाम उलुल इल्म नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो दिन है ये इंतहाई अहमियत का दिन है। अहमियत का दिन इस एतबार से कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त मजलिस का क़याम अमल में नहीं आया, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद 17 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ, जुल्म और ज़बरदस्ती के साथ यहाँ पर बहुत बड़े फसादात जो है करवाए गए, जिसके अंदर सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें चली गई और ऐसा नंगा नाच नाचा गया कि लोगों के दिल में खौफ और हरास इस तरह बैठ गया कि लोग सर पर टोपी पहनने से और दाढ़ी छोड़ने से भी घबराते थे कि कहीं शनाख्त होने पर हमारा जो खत्म खून न कर दिया जाए। लोगों के अंदर जो खौफ और हरास पैदा हो गया था उसको दूर करना उसकी सबसे अहम जरूरत है। हमारे कायदीन अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, उन्होंने कौम के इस हाल को देखकर दिल में ये तहिया कर लिया कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया जरूरी है, क्योंकि यही वो एक वाहिद जमात थी जो आज़ादी से पहले भी इनके हुकूक के लिए हुकूमत निज़ाम से टकराती थी और आज़ादी के बाद भी हुकूमत वक्त से टकराना किसी की बस की बात है। तो हमारे कायदीन वाहिदुद्दीन अवैसी ने इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर अपने हाथ में संभाली और मजलिस का अहिया किया। और अहिया के दूसरे ही साल जब वहाँ पर कॉरपोरेशन के जब बाई इलेक्शन हुए उसमें 2 सीटें खाली हुई थी, दोनों सीटों पर मजलिस ने मुकाबला किया, एक सीट पर मुसलमान को और एक दूसरी सीट पर दलित को। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मजलिस सबसे पहले इलेक्शन में अपनी ठहराई हुई दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल। सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दलित था और सबसे पहला इलेक्ट होने वाला नुमाइंदा मुसलमान था। ऐसी तारीख रखने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान की जो नामनहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर बताकर सिर्फ इसलिए बताती हैं कि उनको मुसलमानों के, दलितों के, क्रिश्चियनों के, पिछड़े तबकात के वोट हासिल करना है, वो सेकुलरिज्म का काम नहीं करते, सिर्फ नामनहाद सेकुलर का नाम देते, नारा देते हैं और काम अपना करते हैं। दरअसल ये जो कांग्रेस
जो इब्तिदा से इख्तिदार में रही है, आज़ादी में अपना हाथ अपना भरपूर अमल रहा, ये बताते हुए इख्तिदार पर कब्जा भी किए और हालिया दिनों तक वो उन्होंने ही इख्तिदार करता रहा। लेकिन कभी भी उन्होंने न पिछड़े तबकात के बारे में सोचा, न दलितों के बारे में सोचा, न मुसलमानों के बारे में सोचा, न क्रिश्चियनों के बारे में सोचा, बल्कि वो वही जो है एजेंडे पर काम करते रहे जो आरएसएस उनको देती रही। आपको ताज्जुब होगा या नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि दरअसल कांग्रेस भी आरएसएस की ही एजेंट है, उसके भी पीछे आरएसएस का ही हाथ है। ये बात जब से जो है ना इसकी भारत की जब तकसीम हुई, पाकिस्तान की शक्ल में एक टुकड़ा मुसलमानों के नाम से एक अलग कर दिया गया और यहाँ पर जो है भारत को एक अलहदा जो है ना पहचान दी गई, इसके भी पीछे कहा जाता है कि जिन्ना की जो है ना ये आइडियोलॉजी थी। ये जिन्ना की आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये आरएसएस का एजेंडा था, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान अगर यहाँ पर भारत में रहेंगे तो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को पाकिस्तान की शक्ल में अलग कर दिया और यहाँ पर जो मुसलमान रह गए उनको दबाते रहे, कुचलते रहे, कभी फसादात कर कर, कभी किसी तौर से, कभी किसी तौर से। मुसलमानों की बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रही है और इस तरह रही है। सबसे पहले मुसलमानों को उनकी जायदादों से, उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए टेनेंसी एक्ट जो है ना उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू किया। कहा गया कि जो जमीन में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसी की जमीन। इस तरह मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को वहाँ पर काम करने वालों की उसमें बांट दिया और उसके बाद मुख्तलिफ नए नए कानून इस तरह बनाते गए कि मुसलमानों की मईशत कमजोर होती रहे। जहाँ जहाँ पर मुसलमान तिजारत में आगे थे वहाँ पर फसादात कराकर, जहाँ पर मुसलमान मुलाजमत में आगे थे वहाँ पर दूसरे तरीके से, जहाँ पर मुसलमान खुशहाल थे वहाँ पर जो है ना इन्होंने मुसलमानों के ना जो है ना कारीगरी को उन्होंने खत्म करते चले गया। मुरादाबाद की कारीगरी को खत्म कर दिया। यहाँ आज मैं बीदर की बात करता हूँ, बीदर में भी जो बिजली कारीगरी है उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये हुकूमतें जो हमारे वोट से इख्तिदार में आती हैं और हमारे ही पीठ में चुरा खोपती हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया कि जो हमारे वोट से जीत कर हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम उनकी पीठ में खंजर, पीठ में नहीं बल्कि उनके सीने पर खंजर भोंकेंगे और बबांगे जाहिर पूरे हिंदुस्तान में ठहर कर हम ये बिल्कुल जुर्रतमंदी के साथ ये कहेंगे कि हाँ हम कांग्रेस के मुखालिफ हैं। कांग्रेस ने हमारी मईशत को तबाह किया, कांग्रेस ने हमारी नस्लों को तबाह किया, कांग्रेस हमारी बर्बादी की जिम्मेदार है, इसलिए हम कांग्रेस को किसी एतबार से भी इख्तिदार में रहने का मौका नहीं देंगे। ये जो मुसलमान जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, जो दलित कांग्रेस की तायीद करते हैं, ये सिर्फ जहनी गुलाम होकर रह गए हैं। जहन के उनके ऊपर गुलामी छा गई है, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मजलिस अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो बीजेपी का फायदा होता है, बीजेपी की एजेंट है। ये कैसी अहमकाना और बेवकूफाना बात है। आप सोच लीजिए कि पार्लियामेंट पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐवान है। इस बड़े ऐवान के अंदर जहाँ पर एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ममालिक की जो अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पर भी एक एक सेकंड हर मुल्क की पार्लियामेंट का काउंट होता है। देखा जाता है कि वहाँ पर क्या कानून बन रहे हैं, किसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। वो वैसी पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर हुकूमत की बनाई जाने वाली हर पॉलिसी के ऊपर तनकीद करने वाला, हर पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले को ये बेवकूफ जो है ना बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बीजेपी का एजेंट है तो पार्लियामेंट में ठहर कर हुकूमत के जितने इक़दाम है, जितने गलत बातें हैं, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है कोई? ये सिर्फ अपने पैरों के नीचे सब कुछ खिसकता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं सुधरता। इसलिए जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका एजेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों से आज के इस मौके पर जो आप लोग जमा हुए हैं, यकीनन आप लोगों की जमात से वाबस्तगी का ये मिसाल है
کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں. ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ صبح کو دیر تک سوتے ہیں. ہم کو یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے. فلسطین کے ایک رہنما اسماعیل ہنیہ نے آواز دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہا کہ جب مسلمان جمعہ میں جس طرح جمع ہوتے ہیں اس طرح فجر کی نماز میں جمع ہونا شروع کریں گے تو فلسطین کو میں صرف 1 ہفتے کے اندر آزاد کرا دوں گا. تو ہم جس کو جو ہے نا یہ حکم دیا گیا ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور ہم ایسے رسول کے ماننے والے آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج مجلس کا حیا ہے. میں الحاج بیرسٹر رسول الدین اویسی کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدر محترم کو جو دور اندیشی دی ہے، جو مدبرانہ صلاحیت دی ہے، جو بیوا کی اور جرأت مندی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور اضافہ کرے. دشمن بھی ہے تو ان کی صلاحیت کا، ان کی قابلیت کا اعتراف کرتا ہے، اور یقینی طور پر آج انہی کی بدولت آج سارے بھارت میں آج مجلس اتحاد المسلمین کو نام لیا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ کدھر حیدرآباد اور کدھر گجرات میں بھی وہاں کے جو ہے نا احمد آباد کے کارپوریشن الیکشن میں مجلس نے اپنے 7 کارپوریٹر جیتے ہیں. اور 2 دن پہلے 28 تاریخ کو گودرا میں بھی الیکشن ہوا ہے. اس کا رزلٹ شاید کل یا پرسوں میں آنے والا ہے. مجھے امید ہے کہ آنے والے رزلٹ میں مجلس اتحاد المسلمین گودرا میں بھی اپنی کامیابی درج کرائے گی، بلکہ ہندوستان کے ہر مقام پر جہاں جہاں پر بیرسٹر رسول الدین اویسی اپنے نمائندوں کو کھڑا کریں گے، مجھے امید ہے کہ تمام OBCs، تمام دلت، تمام کرسچن اور تمام مسلمان مل کر مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے اور اس کو ایک بڑی طاقت کی شکل میں BJP کے مقابلے میں ذہانت پیش کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے قائدین کو اور حوصلہ بخشے. ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور مجلس کے تمام رفقا اور جو ان کے سپاہی ہیں جو مجلس کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، تمام MLAs ہیں، MPs ہیں، کارپوریٹرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، پنچایت ممبرز ہیں، بلکہ تمام کارکنان ہیں جو بھی مجلس سے وابستہ ہیں، ان سب کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک حوصلہ بخشے اور ان تمام لوگوں کے سارے مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پاک پروردگار، یہ جو مجلس کا ہم یوم تاسیس منا رہے ہیں، اس کے احیاء کی سالگرہ منا رہے ہیں، اے اللہ مجلس کے قائدین کے خبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کے اس کام کے ضمن میں اللہ سے بہتر بدلہ عطا فرما. جتنے لوگ اے اللہ مجلس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے دل میں مجلس کے لیے محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے صدر محترم بیرسٹر رسول الدین اویسی کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اکبر الدین اویسی کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ہمارے قائدین کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مجلس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما. ہم تمام طبقات کے لیے
لڑنے اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والا بنا دے. ہماری دعاؤں کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بفضل قبول اور منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ المسلمین زندہ باد. مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد. بینشر اسد الدین اویسی زندہ باد. بینشر اسد الدین اویسی زندہ باد. اکبر الدین اویسی زندہ باد. MIM زندہ باد. MIM زندہ باد. جے بھیم جے بھیم جے بھیم جے بھیم. بھارت کا سنویدھان زندہ باد. بھارت کا سنویدھان زندہ باد. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم جناب محمد حبیب الرحمان صاحب، فاؤنڈر مجلس اتحاد المسلمین لیڈر، اور جناب سابقہ کونسلر محمد ابراہیم صاحب، سابقہ صدر جناب محمد عبدالصمد منجوالا صاحب، مجلس کی ٹیم کے ذمہ داران، عہدیداران اور مجلس سے وابستہ تمام اولو العلم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو دن ہے یہ انتہائی اہمیت کا دن ہے. اہمیت کا دن اس اعتبار سے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا اس وقت مجلس کا قیام عمل میں نہیں آیا، بلکہ بھارت کی آزادی کے بعد 17 ستمبر 1948 کو جب حیدرآباد کو انڈیا میں شامل کیا گیا اور ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ، ظلم اور زبردستی کے ساتھ یہاں پر بہت بڑے فسادات جو ہے کروائے گئے، جس کے اندر سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور ایسا ننگا ناچ ناچا گیا کہ لوگوں کے دل میں خوف اور ہراس اس طرح بیٹھ گیا کہ لوگ سر پر ٹوپی پہننے سے اور داڑھی چھوڑنے سے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں شناخت ہونے پر ہمارا جو ختم خون نہ کر دیا جائے. لوگوں کے اندر جو خوف اور ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ہمارے قائدین اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے قوم کے اس حال کو دیکھ کر دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ایک واحد جماعت تھی جو آزادی سے پہلے بھی ان کے حقوق کے لیے حکومت نظام سے ٹکراتی تھی اور آزادی کے بعد بھی حکومت وقت سے ٹکرانا کسی کی بس کی بات ہے. تو ہمارے قائدین واحد الدین اویسی نے اس مجلس اتحاد المسلمین کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور مجلس کا احیاء کیا. اور احیاء کے دوسرے ہی سال جب وہاں پر کارپوریشن کے جب بائی الیکشن ہوئے اس میں 2 سیٹیں خالی ہوئی تھی، دونوں سیٹوں پر مجلس نے مقابلہ کیا، ایک سیٹ پر مسلمان کو اور ایک دوسری سیٹ پر دلت کو. اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ مجلس سب سے پہلے الیکشن میں اپنی ٹھہرائی ہوئی دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی. سب سے پہلا الیکٹ ہونے والا نمائندہ مجلس اتحاد المسلمین کا دلت تھا اور سب سے پہلا الیکٹ ہونے والا نمائندہ مسلمان تھا. ایسی تاریخ رکھنے کے باوجود بھی یہ ہندوستان کی جو نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں جو خود کو سیکولر بتا کر صرف اس لیے بتاتی ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے، دلتوں کے، کرسچنوں کے، پچھڑے طبقات کے ووٹ حاصل کرنا ہے، وہ سیکولرزم کا کام نہیں کرتے، صرف نام نہاد سیکولر کا نعرہ دیتے ہیں اور کام اپنا کرتے ہیں. دراصل یہ جو کانگریس جو ابتدا سے اقتدار میں رہی ہے، آزادی میں اپنا بھرپور عمل رہا، یہ بتاتے ہوئے اقتدار پر قبضہ بھی کیے اور حالیہ دنوں تک وہ انہوں نے ہی اقتدار کرتا رہا.
लेकिन कभी भी उन्होंने न पिछड़े तबकात के बारे में सोचा, न दलितों के बारे में सोचा, न मुसलमानों के बारे में सोचा, न क्रिश्चियनों के बारे में सोचा, बल्कि वो वही जो है एजेंडे पर काम करते रहे जो आरएसएस उनको देती रही। आपको ताज्जुब होगा या नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि दरअसल कांग्रेस भी आरएसएस की ही एजेंट है, उसके भी पीछे आरएसएस का ही हाथ है। ये बात जब से जो है ना इसकी भारत की जब तकसीम हुई, पाकिस्तान की शक्ल में एक टुकड़ा मुसलमानों के नाम से एक अलग कर दिया गया और यहाँ पर जो है भारत को एक अलहदा जो है ना पहचान दी गई। इसके भी पीछे कहा जाता है कि जिन्ना की जो है ना ये आइडियोलॉजी थी, ये जिन्ना की आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये आरएसएस का एजेंडा था। क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान अगर यहाँ पर भारत में रहेंगे तो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को पाकिस्तान की शक्ल में अलग कर दिया और यहाँ पर जो मुसलमान रह गए उनको दबाते रहे, कुचलते रहे, कभी फसादात कर कर, कभी किसी तौर से, कभी किसी तौर से। मुसलमानों की बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रही है। और इस तरह रही है, सबसे पहले मुसलमानों को उनकी जायदादों से, उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए टेनेंसी एक्ट जो है ना उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू किया। कहा गया कि जो जमीन में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसी की जमीन। इस तरह मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को वहाँ पर काम करने वालों की उसमें बांट दिया। और उसके बाद मुख्तलिफ नए नए कानून इस तरह बनाते गए कि मुसलमानों की मईशत कमजोर होती रहे। जहाँ जहाँ पर मुसलमान तिजारत में आगे थे वहाँ पर फसादात कराकर, जहाँ पर मुसलमान मुलाजमत में आगे थे वहाँ पर दूसरे तरीके से, जहाँ पर मुसलमान खुशहाल थे वहाँ पर जो है ना इन्होंने मुसलमानों के ना जो है ना कारीगरी को उन्होंने खत्म करते चले गया। मुरादाबाद की कारीगरी को खत्म कर दिया। यहाँ आज मैं बीदर की बात करता हूँ, बीदर में भी जो बिजली कारीगरी है उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये हुकूमतें जो हमारे वोट से इख्तिदार में आती हैं और हमारे ही पीठ में जुराक होती हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया कि जो हमारे वोट से जीत कर हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम उनकी पीठ में खंजर, पीठ में नहीं बल्कि उनके सीने पर खंजर भोंकेंगे और बबांगे दहल पूरे हिंदुस्तान में ठहर कर हम ये बिल्कुल जुर्रतमंदी के साथ ये कहेंगे कि हाँ हम कांग्रेस के मुखालिफ हैं। कांग्रेस ने हमारी मईशत को तबाह किया, कांग्रेस ने हमारी नस्लों को तबाह किया, कांग्रेस हमारी बर्बादी की जिम्मेदार है, इसलिए हम कांग्रेस को किसी एतबार से भी इक़्तिदार में रहने का मौका नहीं देंगे। ये जो मुसलमान जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, जो दलित कांग्रेस की तायीद करते हैं, ये सिर्फ जहनी गुलाम होकर रह गए हैं। जहन के उनके ऊपर गुलामी छा गई है, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मजलिस अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो बीजेपी का फायदा होता है, बीजेपी की एजेंट है। ये कैसी अहमकाना और बेवकूफाना बात है। आप सोच लीजिए कि पार्लियामेंट पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐवान है। इस बड़े ऐवान के अंदर जहाँ पर एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पर भी एक एक सेकंड हर मुल्क की पार्लियामेंट का काउंट होता है। देखा जाता है कि वहाँ पर क्या कानून बन रहे हैं, किसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। वो वैसी पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर हुकूमत की बनाई जाने वाली हर पॉलिसी के ऊपर तनकीद करने वाला, हर पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले को ये बेवकूफ जो है ना बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बीजेपी का एजेंट है तो पार्लियामेंट में ठहर कर हुकूमत के जितने इक़दाम है, जितने गलत बातें हैं, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है कोई? ये सिर्फ अपने पैरों के नीचे सब कुछ ही खिसकता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं सुधरता। इसलिए जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका एजेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों से आज के इस मौके पर जो आप लोग जमा हुए हैं, यकीनन आप लोगों की जमात से वाबस्तगी का ये मिसाल है कि आप लोग जो है ना अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम लोग सुबह को देर तक सोते हैं। हमको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। फलस्तीन के एक रहनुमा इस्माइल होनिया ने
आवाज देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब मुसलमान जुमा में जिस तरह जमा होते हैं उस तरह फजर की नमाज में जमा होना शुरू करेंगे तो फलस्तीन को मैं सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आजाद करा दूंगा। तो हम जिसको जो है ना ये हुक्म दिया गया है कि सुबह का सोना रिस्क को रोकता है, और हम ऐसे रसूल के मानने वाले आपकी तालीमात पर अमल ना करते हुए आज दलील खार हो रहे हैं। आज मजलिस का आया है, मैं अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सदर मोहतरम को जो दूर अंदेशी दी है, जो मुदब्बिराना सलाहियत दी है, जो बेबाकी और जरूरतमंदी दी है, अल्लाह ताला उसके अंदर और इजाफा करे। दुश्मन भी है तो उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का एतराफ करता है, और यकीनी तौर पर आज उन्हीं की बदौलत आज सारे भारत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाम लिया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आप सोचिए कि किधर हैदराबाद और किधर गुजरात में भी वहाँ के जो है ना अहमदाबाद के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मजलिस ने अपने 7 कॉर्पोरेटर जीते हैं, और 2 दिन पहले 28 तारीख को गोधरा में भी इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट शायद कल या परसों में आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले रिजल्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोधरा में भी अपनी कामयाबी दर्ज कराएगी, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुकाम पर जहाँ जहाँ पर बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे, मुझे उम्मीद है कि तमाम ओबीसीज, तमाम दलित, तमाम क्रिश्चियन और तमाम मुसलमान मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे, और इसको एक बड़ी ताकत की शक्ल में बीजेपी के मुकाबले में जो है ना पेश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे कायदीन को और हौसला बख्शे। साथ ही साथ मैं हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत से कामिला व आजिला अता फरमाए, और मजलिस के तमाम रफ़क़ा और जो उनके सिपाही हैं, जो मजलिस के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम MLAs हैं, MPs हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, बल्कि तमाम कारकुनान हैं जो भी मस्जिद से वाबस्ता हैं, उन सब के दिल में अल्लाह ताला एक हौसला बख्शे और उन तमाम लोगों के सारे मसाइल को अल्लाह पाक हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।